Hello everyone. In last class we have talked about the function, and in this chapter we have talked about the function introduction, then what are the advantages of using functions, then finally we have talked about how to write the function definition and how to call the function, and specifically we have talked about user defined function. I also talked about some built-in functions. So this is all about the functions we have studied in last class. But in this class we'll be talking about scope of variable, okay, or variable scope. Okay, so that will be on context to your function. So what is scope means? Scope means is nothing but the value of the variable in which the variable's value is valid. इसका मतलब ये है, एक फंक्शन में या एक प्रोग्राम में एक रीजन होता है जिस रीजन में और एरिया में आपका वेरिएबल का वैल्यू वैलिड होता है, उसको क्या बोलते हैं? स्कोप. So it is defined as the region or area in a program where the variable's value is valid. Okay, so scopes can be of three types. First one is local scope, global scope, and non the both two scopes only, local scope and global scopes. For variables, based on the scopes, the variables can be of three types: local variable, global variable, and non-local variables. Okay, so what are local variable? So they accessible only, these variables, they are accessible only inside the functional block where it is declared. Are you getting it? इसका मतलब ये है कि उस फंक्शनल ब्लॉक में वो एक्सेसिबल है, या मतलब ये है कि उसका वैल्यू वैलिड है जहां वो डिक्लेयर्ड और डिफाइन किया गया है. Okay, that is what local variable. So what is global variable? Global variables are those variables whose whose value is valid throughout the program. मतलब प्रोग्राम में हर जगह वो वेरिएबल का वैल्यू वैलिड है. Okay, what are non-local variables? They are actually, what do you call that? They are actually takes place when we will be talking about the nested function. तो नेस्टेड फंक्शंस क्या है? एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है ना. तो नेस्टिंग इज नथिंग बट कीपिंग समथिंग इनसाइड अनदर थिंग. जैसे कि नेस्टेड फॉर लूप बोले थे, तो एक आउटर फॉर लूप के अंदर एक इनर फॉर लूप था. नेस्टेड इफ बोले थे, या एक इफ ब्लॉक, आउटर इफ ब्लॉक के अंदर एक इनर इफ ब्लॉक था. ओके, सिमिलर टू दैट इट इज नेस्टेड फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन. ओके, so this is the variable scope. So the next thing, let me just, I have taken from internet some documentation, so let's see them. So first we'll be talking about global variable. In Python, a variable declared outside the function or in a global scope is known as a global variable. मतलब क्या? एक फंक्शन के बाहर जो भी वेरिएबल आप डिक्लेयर कर रहे हो उसको हम क्या बोलेंगे? ग्लोबल वेरिएबल. दिस मीन्स दैट ए ग्लोबल वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड इनसाइड और आउटसाइड द फंक्शन. समझ रहे हो? इसका मतलब वो एक्सेसिबल इनसाइड भी हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है, बट द डिक्लेरेशन हैज टू बी आउटसाइड द फंक्शन. Okay, for example, this is one example. You see, create a global variable. Okay, so you see x, x is a string whose name is whose value is global. X is a string whose value is global, and def foo is a function, and this x is declared outside the function foo. That's why this is a
ग्लोबल वेरिएबल। आर यू गेटिंग इट? इसका मतलब ये है अब फंक्शन के बाहर कुछ भी डिक्लेयर कर दो, ठीक है, कुछ भी वेरिएबल डिक्लेयर करो, उस वेरिएबल को हम क्या बोलेंगे? ग्लोबल वेरिएबल। यू कैन डिक्लेयर सम अदर वेरिएबल y इक्वल टू 10, इस तरह भी डिक्लेयर कर सकते। तो y इज ऑल्सो ए ग्लोबल वेरिएबल सिमिलर टू x। देन this global variable can be accessed inside your inside the function as well as, okay, inside the function मतलब क्या? ये वाला inside the function as well as outside the function, नहीं है, क्योंकि def का तो ये पूरा इस जगह में लिखा गया, ये this is outside the function। okay, how we can know what is inside, what is outside the function? by knowing the what इंडेंटेशन, इजंट इट, क्योंकि def के मतलब पूरा सीधा में ही लिखा है आपका ये प्रिंट x आउटसाइड बोल के, तो ये आउटसाइड द फंक्शन है। def के ब्लॉक के अंदर लिखा गया है ये आपका इनसाइड द फंक्शन। तो नेक्स्ट थिंग, कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस? इट्स नथिंग बट द फंक्शन व्हाट? कॉलिंग। फंक्शन कॉलिंग कैसे बताया था मैंने? फंक्शन का नाम लिखो और फिर क्या करना है, जिस तरह उसका जैसे कि फंक्शन का नाम क्या है? एफ ओ के बाद इसमें कोई पैरामीटर है क्या? कोई पैरामीटर नहीं है, इसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं रहेगा। मैंने क्या बताया था? फंक्शन का जहाँ आप डिफाइन कर रहे हो, तो ये def कीवर्ड के थ्रू से हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, तो उस जगह को उसमें जो भी आप वेरिएबल्स लिखोगे या वेरिएबल या लिखोगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? दे आर कॉल्ड पैरामीटर्स, नॉट आर्ग्यूमेंट, बट while calling they all are called function arguments। में जो भी लिखोगे हम आर्ग्यूमेंट बोलेंगे, but many a time people used to they used to tell both the things parameters or argument based on their convenient, but actually this is the thing, okay? So let's go to next example. So this is how we can create a global variable. The next thing, let's talk about local variable. So what is local variable? A variable declared inside the function's body or in the local scope is known as local variable। okay? तो लोकल बॉडी क्या है, लोकल स्कोप क्या है? तो मैंने क्या बोला था? स्कोप दो तरह के होते हैं, ग्लोबल स्कोप जो कि आपका फंक्शन के बाहर है, लोकल स्कोप मतलब क्या? एक ब्लॉक के अंदर है, फंक्शन हो सकता है, वो फंक्शन का ब्लॉक हो सकता है, या मतलब फंक्शन हो सकता है मतलब क्या? फंक्शन का ब्लॉक हो सकता है, या आपका फॉर लूप का ब्लॉक हो सकता है, इफ का ब्लॉक हो सकता है, या व्हाइल का ब्लॉक हो सकता है। तो दीज आर सम लोकल स्कोप ओनली। इफ ब्लॉक के अंदर वो लोकल टू दैट इफ ब्लॉक, इट। तो ये आपका क्या है? लोकल वेरिएबल। तो इसमें एक एग्जांपल देखते हैं। तो यू सी दिस एग्जांपल, x इक्वल टू ग्लोबल। क्या है? x एक वेरिएबल दिया है जिसका नाम ग्लोबल रखा गया है, और तो ये कौन सा टाइप का वेरिएबल बनेगा? कैन यू टेल मी? दिस इज ऑल दिस यू जस्ट have just discussed this। so this is what is global variable। क्यों? क्योंकि आपका ये फंक्शन के बाहर है। okay? अभी बात करते हैं लोकल वेरिएबल। तो डोंट कंसिडर दिस थिंग फॉर द टाइम बिंग। तो अभी इसको अभी थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इसका हैश लिखा मैंने, कमेंट आउट कर दिया है ना। तो x इज ए ग्लोबल वेरिएबल एंड व्हाट अबाउट y? y क्या है?
y इज ए लोकल वेरिएबल। क्यों लोकल वेरिएबल है? क्योंकि वो डेफ टू बल्कि जो फंक्शन है आपका डेफिनेशन है उस ब्लॉक के अंदर y लिखा है आपका लोकल वेरिएबल। ठीक है, देन सो दैट इज व्हाट इज लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल मीन्स। अभी अभी तो एक छोटा सा एग्जांपल करके देखते हैं आइडियली में। तो let me go to script mode, write my function file, okay, what file, then new file, then here I have to write my code, isn't it? So def pose fun is the name of the function, okay. Let me write the function definition. So suppose let me create some, okay, first let me create a global variable। तो global variable कैसे लिखूंगा? फंक्शन के आउटसाइड में लिखेंगे। सपोज तो हम तो ग्लोबल वेरिएबल is x equal to 10, so this is the global variable। okay? अभी मैं लोकल वेरिएबल भी मैं बना सकता हूँ x इक्वल टू 20, तो बना सकता हूँ क्या? यस आई कैन डेफिनेटली मेक, एंड आई वांट टू प्रिंट दोज वैल्यूज, प्रिंट x, एंड ये फंक्शन स्कोप खत्म होने के बाद हमें क्या क्या करूँगा? प्रिंट x अगेन। तो ये आपका कौन सा है? लोकल स्कोप। इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसमें एक स्ट्रिंग दे देता हूँ, स्ट्रिंग में लिखता हूँ कल बोल के लोकल इक्वल टू एन कॉमा देते हैं, उसके बाद ग्लोबल एक्स का ग्लोबल एक्स global x equal to x, so this is x equal to 10 function, अगर x equal to 20 तो this is the global x, right? this is your okay। तो इसको मैं रन करूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा? तो देखो मैं लास्ट टाइम क्या बताया था, इस तरह हम एक स्क्रिप्ट में लिखेंगे, उसके बाद सेव करेंगे और उसके बाद फिर को रन करेंगे। कहाँ रन करेंगे? आपका पाइथन शेल में, इस जगह में रन करेंगे। मैं ऐसे बताया था, बट वी कैन कॉल द फंक्शन हियर ओनली। स्क्रिप्ट में ही हम फंक्शन को कॉल भी कर सकते हैं। तो ये आपका फंक्शन ख़त्म हो गया, डेफिनेशन ख़त्म हो गया। तो मैं क्या करूँगा, फंक्शन को इधर से कॉल कर देता हूँ। कॉल कैसे करेंगे फंक्शन का? क्या लिखेंगे? फंक्शन नेम, तो फंक्शन नेम फन, कोई पैरामीटर है क्या? कुछ नहीं, दिस इज द व्हाट फंक्शन कॉलिंग। कमेंट देके लिख फंक्शन कॉलिंग, व्हाट इज दिस? दिस इज फंक्शन, ठीक है, योर फंक्शन डेफिनेशन एंड योर फंक्शन। तो उसको क्या करते हैं, फिर स्क्रिप्ट नोट लिखने के बाद क्या करते हैं, मैं बताया था सेव करते हैं, सेव इट, देन आफ्टर यू सेव इट राइट इट fun1.py, प्रॉब्लम
सेव हो गया आपका, ये जो पाथ है, पाथ में आपका on1 सेव हो गया। सेव होने के बाद क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। रन कैसे करेंगे, रन मॉड्यूल, मॉड्यूल रन हो गया तो देखो कहाँ, अभी देखो आपका लोकल एक्स का वैल्यू कितना हुआ, 20 हुआ। क्यों, क्योंकि जब फन फंक्शन कॉल हुआ तो ये कंट्रोल इनिशियली किधर था, तो इस तरह हम क्या, इससे फंक्शन जब रन होगा तो पहला चीज़ क्या एग्जीक्यूट होगा, आपका फंक्शन कॉलिंग। तो ये कॉल हुआ, कॉल हुआ तो क्या होगा, कंट्रोल इस जगह से कहाँ जाएगा, आने के बाद क्या होगा, पहले एक्स का वैल्यू 20 बोल, उससे पहले वो ग्लोबल स्कोप में भी एक्स का वैल्यू 10 बोल के पास है ऑलरेडी, तो उसके पास एक्स का वैल्यू 10 ऑलरेडी है। उसके बाद फन फन को फंक्शन को कॉल करेगा तो फिर क्या आ जाएगा, इधर जाएगा, फिर एक्स का वैल्यू कितना है, 20 है, ठीक है। फिर प्रिंट करेगा, तो प्रिंट क्या करेगा, लोकल एक्स इक्वल टू 20। क्यों 20 प्रिंट करेगा, क्योंकि ये जो एक्स जो वेरिएबल प्रिंट करना, वैल्यू प्रिंट वेरिएबल का मतलब इस वेरिएबल का वैल्यू इस ब्लॉक के अंदर ही वैलिड है। इस ब्लॉक में जो भी एक्स रहेगा उसी चीज़ को क्या करेगा, वो एक्सेस करेगा। तो एक्स का वैल्यू अभी एक्सेस करेगा 20 वो। अगर ओके लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट, तो एक्स का वैल्यू 20 बोल के एक्सेस करेगा। फिर क्या होगा, अभी ये फन फंक्शन में भी ये ख़त्म हो गया, देखो अंदर और कुछ नहीं, और कोई कोई लाइन्स मतलब कोई स्क्रिप्ट नहीं है उसके बाद, प्रिंट फंक्शन के बाद। तो फिर क्या होगा, इस जगह से फिर से वो कहाँ आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे आएगा। तो ये नेक्स्ट लाइन कहाँ मतलब कैसे पता चलेगा ये नेक्स्ट लाइन में जाना है बोल के, क्योंकि हम जानते हैं देयर इज समथिंग कॉल्ड पीसी, इजंट इट, व्हाट इज पीसी, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, है ना। तो क्या होता है, तो ये क्या स्टोर करता है रजिस्टर, इट स्टोर्स द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूट। तो जब इधर से, जब पहले तो ये आपका, फिर से बताता हूँ, पहले ये आपका ये वाला लाइन चलेगा, तो ये चलने के बाद क्या होगा, एक्स इक्वल टू 10 बोल के ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल स्कोप में एक वेरिएबल क्रिएट होगा। उसके बाद क्या होगा, ये वाला डेफिनेशन है, विल नॉट एग्जीक्यूट, है ना। तो बस इसको पता चले कि एक डेफिनेशन है फंक्शन। बाद कहाँ होगा, जहाँ कॉलिंग है उसमें जाएगा। तो यहाँ कॉलिंग है तो कॉलिंग इधर है, मतलब क्या, फंक्शन फॉन फंक्शन ने कॉल किया, कॉल किया तो क्या होगा, इधर से इधर जाएगा, फिर इधर आप उसका सारे एग्जीक्यूशन करेगा। जब खत्म हो जाएगा फिर क्या होगा, प्रोग्राम काउंटर में जो आपका एड्रेस लिखा होगा उस एड्रेस में जाके इस एड्रेस में जाएगा। ओके, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, इट स्टोर्स द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूट, ठीक है। तो फंक्शन कॉल होगा तो इसका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, ये वाला, तो इसका जो एड्रेस है प्रोग्राम काउंटर में स्टोर हो जाएगा। तो फिर आपका ग्लोबल एक्स, ग्लोबल एक्स का वैल्यू क्या है, क्या है, तो अभी देखो, अभी ये वाला जो ग्लोबल एक्स है वो इस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि ये ब्लॉक स्कोप है, एक फंक्शन जो फन फंक्शन के ब्लॉक में ही वो वैलिड है। इस एक्स का वैल्यू जो 20 है ये फन फंक्शन के अंदर ही वैलिड है, ओके। बट ये जो ग्लोबल एक्स है उसका उस वेरिएबल का वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम वैलिड है। तो मैंने क्या बताया था, व्हाट इज लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल मतलब ये है वो कोई ब्लॉक के अंदर वैलिड होगा। वो फंक्शन का ब्लॉक हो सकता है, इफ ब्लॉक हो सकता है, फॉर लूप का ब्लॉक हो सकता है, व्हाइल लूप का ब्लॉक हो सकता है, और कुछ भी कोई भी मतलब डिफरेंट क्या बोलते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर का ब्लॉक हो सकता है, ठीक है। तो वो आपका क्या हो गया, लोकल टू दैट ब्लॉक ओनली। तो इसलिए इस ब्लॉक के अंदर ही उसका स्कोप है, स्कोप है मतलब क्या, उसका वैल्यू इस ब्लॉक के अंदर ही वैलिड है। बट ग्लोबल का क्या है, क्योंकि यह फंक्शन के बाहर डिफाइन किया गया है इसलिए उसका स्कोप
थ्रू आउट द प्रोग्राम है। ठीक है, इसलिए हम ग्लोबल एक्स कॉमा एक्स बोल के प्रिंट किए तो क्या होगा, आपका ये वाला वेरिएबल प्रिंट करेगा। तो एक्स का जो वैल्यू 10 है, so that is the difference between local and global. Let's talk into a deeper concept. तो मैं क्या बोल रहा था, ये बोल रहा था, तो अभी सपोज ये वाला जो x इक्वल टू 20 है, ये हमारा नहीं रहता, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अभी लोकल x इक्वल टू x बोल के हम देख रहे हैं, तो अभी क्या होगा, टाइप करो और फिर रन करो। now you see ये वाला जो x है, ये क्या किया, इसका जो नेक्स्ट ग्लोबल स्कोप है से वैल्यू ले ली। मतलब क्या, अगर आपका ब्लॉक स्कोप में x बोल के कोई वेरिएबल नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो ग्लोबल वेरिएबल x का वैल्यू जो 10 है उसको रेफर करेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये x का वैल्यू आपका इधर 10 दिखा। और ये x इक्वल टू 20 कैसे हुआ, वो तो मतलब 10 कैसे हुआ, वो तो हम बताए थे कि क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल कहीं पे भी एक्सेस हो सकता है, इसलिए x का वैल्यू आपका 10 हो गया। ठीक है, तो ये रीजन है आपका। और एक बात है, अच्छा, तो मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो x है 10, ये वाला जो x जो ग्लोबल स्कोप में वेरिएबल 10 है, वेरिएबल का वैल्यू को मैं चेंज करूँ। कैसे चेंज करूँ, कैसे चेंज करूँगा, तो आई कैन डू वन थिंग। क्या करूँगा, मैं 20 बोल के चेंज कर दूंगा ना, कर सकता हूँ, और फिर वो चेंज हो जाएगा। बट लेट मी टेल यू अनदर थिंग, सपोज मैं इस फंक्शन के अंदर ही x का वैल्यू को चेंज करना चाहूँगा। तब क्या, मैं अगर x इक्वल 20 लिखूँ तो ये वाला वैल्यू भी 20 हो जाए, इस तरह मैं चाहता हूँ। हमने तो देखे थे पहले कि x इक्वल 20 लिखने के बाद भी हमारा क्या था, मतलब इस x का वैल्यू ही चेंज हुआ था, बट ये वाला वैल्यू वो 10 ही था। हमने रन कर देता हूँ फिर। क्या है ये, तो ये आपका 10 ही है ना, मतलब x का वैल्यू इधर 20 है और ग्लोबल का वैल्यू 10 है, तो पहले हमने किए थे। तो मैं क्या करूँगा ताकि इस जगह में ये x का वैल्यू 20 हो जाए, तो इस चीज़ को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक कीवर्ड यूज करेंगे। व्हाट इज दैट कीवर्ड, द कीवर्ड इज कॉल्ड ग्लोबल। ओके, तो ग्लोबल कीवर्ड में अगर यूज करूँगा, और कौन सा मतलब कौन सा मतलब ग्लोबल के बाद क्या लिखूँगा, मतलब ग्लोबल स्कोप में कौन सा वेरिएबल को आप एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि ग्लोबल स्कोप में x हो सकता है, y हो सकता है, देन z हो सकता है, कुछ भी वेरिएबल हो सकते हैं। तो इसमें मैं कौन सा ग्लोबल वेरिएबल को मैं एक्सेस करना चाहूँगा, तो मैं क्या करूँगा, इसमें ग्लोबल लिखूँगा, और अगर x लिख दूँगा तो क्या होगा, ये जो अभी सब्सिक्वेंट जितने भी x आएंगे, इसका मतलब ये ग्लोबल स्कोप में ही, मतलब ग्लोबल x को ही रेफर कर रहा है बोल के हम सोचें। आर यू गेटिंग इट, दैट मीन्स इफ वी आर राइटिंग ग्लोबल x, then this x equal to 20
means that the global x value that was 10 will be replaced with 20. Okay, so that is the meaning of this global keyword. अभी समझ में ग्लोबल कीवर्ड क्या है? तो ग्लोबल कीवर्ड ये है कि अगर हम ग्लोबल स्कोप में जितने वेरिएबल्स हैं उनको लोकली चेंज करना चाहेंगे तो क्या करेंगे? हम ग्लोबल कीवर्ड यूज करेंगे और फिर स्पेस देके उस वेरिएबल को लिखेंगे जो ऑलरेडी ग्लोबल है और इसको हम लोकली यूज करना चाहेंगे. ठीक है, यूज करना चाहेंगे मतलब क्या? एक्स का वैल्यू को हम जैसे 20 कर दिए, इसका मतलब ये वाला वैल्यू रिप्लेस होकर 20 हो जाए. ठीक है, तो लेट्स सी. तो अगर इस तरह होगा तो अभी बताओ कि प्रिंट फंक्शन लोकल एक्स कॉमा एक्स क्या बनेगा? विल इट प्रिंट 20? यस, विल प्रिंट. वाई? क्योंकि ग्लोबल एक्स लिखे हैं तो एक्स का एक्स को 20 लिखा तो क्या होगा? ये आपका ये ग्लोबल एक्स में रिप्लेस हो जाएगा 10 से, तो बन जाएगा 20. ठीक है, तो 20 बन जाएगा तो क्या होगा? प्रिंट लोकल एक्स इक्वल 20, तो ये 20 प्रिंट कर. ठीक है, तो हम इस तरफ पहले तो जैसे कि हम जानते हैं कि एग्जीक्यूशन स्टार्ट फ्रॉम लाइन 1 है ना. तो लाइन जो पहला लाइन है वो पहला एग्जीक्यूट का उसके बाद फंक्शन जहाँ कॉल हुआ तो ये कॉल होगा तो फिर इधर जाएगा, फिर ग्लोबल एक्स लिखेगा तो क्या होगा कि ये वाला जो एक्स है इसको रेफर करेगा. ठीक है, तो रेफर कर फिर एक्स इक्वल 20 लिखेगा तो ये वाला जो 10 है रिप्लेस होकर जाएगा 21. ओके, फिर क्या होगा? लोकल एक्स इक्वल टू एक्स मतलब क्या होगा? एक्स का वैल्यू आपका 20 प्रिंट हो. और फिर अभी इसके बाद और कोई लाइन नहीं है तो फिर क्या होगा? जगह से वो प्रोग्राम काउंटर के थ्रू सहारे कहाँ जाएगा? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में जाएगा, मतलब इस में आएगा. फिर क्या करेगा? प्रिंट ग्लोबल एक्स. तो अभी एक्स का ग्लोबल एक्स का वैल्यू कितना है? 20 है, तो ये क्या करेगा? 20 print. Are you getting it? So this is very easy, isn't it? So if you're not getting, just watch the video once or twice. You'll definitely get something. Let's run the program. Now you see, अभी देखो लोकल एक्स का भी 20 आया, ग्लोबल एक्स का भी 20 आया. This is all about the local and global. Okay, so next thing, let me tell another thing. Okay, तो ये आपका, तो अगर आप बताओ अभी सपोज मैं x इक्वल टू 30 लिखता हूँ तो अभी आउटपुट क्या होगा? जस्ट थिंक अबाउट इट. तो आउटपुट क्या होगा? तो पहले तो ये तीनों लाइन चल जाएंगे अपने x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 30, z इक्वल टू 40. तो ये आपका तीन वेरिएबल असाइन हो जाए ग्लोबल स्कोप. उसके बाद फंक्शन, ये फन वाला फंक्शन कॉल होगा. कॉल होने से क्या होगा? इधर जाएगा तो ग्लोबल एक्स मतलब इसको रेफर करेगा, फिर एक्स इक्वल 20, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 हो. फिर क्या होगा? प्रिंट लोकल एक्स इक्वल टू एक्स. तो भी क्या होगा? एक्स का वैल्यू जो 20 है उसी को एक्सेस. फिर एक्स इक्वल टू 30, एक्स 30 लिखोगे तो क्या होगा? इस जगह में जो 20 था फिर से 30 हो जाएगा. फिर के बाद ख़त्म हो गया तो फिर क्या होगा? नेक्स्ट प्रोग्राम काउंटर के थ्रू से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में जाएगा. फिर ग्लोबल एक्स इक्वल टू एक्स का वैल्यू अभी कितना है? 30 है, तो ये क्या करेगा? 30 प्रिंट करेगा. ठीक है, तो इट विल प्रिंट
20 and 30. So it is printing 20. Okay, so this is very basic introduction of local and global scope. So let's do some more examples. तो अभी देखो मैं और एक will be talking about non-local variable latter part. Okay, so let's talk about this example. देखो लोकल वेरिएबल ऑफ प्रोग्राम क्या है, ये फन का मतलब क्या है, फन बोल के एक फंक्शन बनाए हैं और फिर इसमें एस में एक स्ट्रिंग दिए आई लव इंडिया. So that is this s a local variable to this function और फिर प्रिंट s किए. इसका मतलब क्या होगा, ये जो s है ये बस लोकल वेरिएबल को ही एक्सेस करेगा. उसके बाद s इक्वल टू आई लव वर्ल्ड. s अभी देखो df के सीधा है, इसका मतलब क्या है, वो इस फंक्शन स्कोप में नहीं है, ये प्रोग्राम स्कोप में है. तो प्रोग्राम स्कोप बोलते हैं. जो प्रोग्राम के अंदर है, फंक्शन के अंदर नहीं है. प्रोग्राम के अंदर है बट फंक्शन के बाहर है, तो ये आपका प्रोग्राम स्कोप है. तो ऐसे आई लव वर्ल्ड. फिर क्या किया, फन बोल के लिख के इस तरह ब्रैकेट दिया. इसका मतलब क्या है, दिस इज नथिंग बट फंक्शन कॉलिंग. दिस फंक्शन कॉलिंग. ओके, कॉलिंग. सॉरी फॉर माई राइटिंग. दिस इज अ फंक्शन कॉलिंग. उसके बाद क्या, प्रिंट एस. तो एस प्रिंट करेगा. तो अभी इसका आउटपुट क्या होगा, जैसे क्या बोलते हैं, प्रोग्राम आपका शुरू होता है कहाँ से, जहाँ आपका फंक्शन कॉल होता है. फंक्शन इधर कॉल हुआ, ठीक है. उससे पहले क्या होगा, ये एस बोल के एक वेरिएबल आई लव वर्ल्ड बोल के ग्लोबल स्कोप में, ये आपका ग्लोबल है. तो ग्लोबल को सपोज मैं जी लिख देता हूँ ना, मतलब ग्लोबल है. तो ये आपका ग्लोबल स्कोप में आई लव वर्ल्ड लिखा है. एंड उसके बाद क्या हुआ, फन फंक्शन में कॉल किया. फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा, फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा, इस जगह से हाँ और डिफाइन इस जगह में आया. ठीक है. इधर से आने के बाद क्या होगा, फंक्शन के अंदर जो भी है वो एक्सेस करेगा. क्या होगा, एस आई लव इंडिया. तो अभी ये लोकल एस में क्या, आई लव इंडिया हुआ. तो प्रिंट एस बोलेगा तो क्या होगा, ये लोकल एस प्रिंट करेगा, तो आई लव इंडिया विल बी प्रिंटेड फर्स्ट. उसके बाद क्या होगा, अभी ये ख़त्म हो गया आपका फंक्शन फन का डेफिनेशन. उसके बाद क्या होगा, इस जगह से वो आ जाएगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन बाय यूज द हेल्प ऑफ प्रोग्राम काउंटर. क्योंकि प्रोग्राम काउंटर में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड का एड्रेस आपका रहेगा. ओके, प्रोग्राम काउंटर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड. ओके, तो फिर क्या करें, प्रिंट एस. तो प्रिंट एस करेगा तो क्या होगा, वो ये वाला एस को प्रिंट करेगा, ये वाला एस को प्रिंट, कौन सा एस को प्रिंट करेगा, विल प्रिंट दिस एस, not this. Okay, why, because this is in the local scope of this function and this is the global scope. That's why print s means what, it can access the any variable that is present inside the function, not in the not in the function. This s can be accessed because it is present inside the program. Okay, क्योंकि ये प्रोग्राम स्कोप में है. Okay, so that's why it will print I. So can you tell me what we will do for this thing, global variable program? Let's go through it. I think I have told about the use of the global keyword. global keyword क्या होता है मैं उसके बारे में बता दिया.
तो इसके थ्रू से हम क्विकली बता सकते हैं कि ये आपका मतलब किस तरह काम करेगा ये प्रोग्राम। मैं बता देता हूँ। तो फंक्शन डेफिनेशन तो हो गया, फिर क्या होगा, एस क्या है, फंक्शन के बाहर है, तो ये आपका क्या है, ग्लोबल एस। फिर क्या होगा, फंक्शन को कॉल करेगा तो क्या होगा, वो इस जगह से जंप करेगा किसी दूसरे जगह जहाँ फंक्शन डिफाइंड है। फंक्शन कहाँ डिफाइंड है, इधर डिफाइंड है, ठीक है। बट इससे पहले क्या करेगा, वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में स्टोर करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, इधर से वो जंप करेगा जहाँ आपका फंक्शन। फिर ग्लोबल एस, इसका मतलब क्या है, ग्लोबल स्कोप में जो एस है उसी को एक्सेस करने का, उसी को एक्सेस करने का मतलब को एक्सेस करना। फिर प्रिंट एस, तो प्रिंट एस के अनुसार क्या होगा, प्रिंट एस मतलब क्या, अभी ग्लोबल स्कोप को ही एक्सेस, मतलब ग्लोबल स्कोप में जो वेरिएबल एस है उसी को ही एक्सेस कर रहा है, तो प्रिंट एस करेगा तो क्या होगा, ये वाला एस प्रिंट होगा, तो ये वाला एस क्या है, आई लव वर्ल्ड, तो आई लव वर्ल्ड प्रिंट। उसके बाद एस इक्वल टू आई लव इंडिया, तो आई लव इंडिया मतलब क्या, अभी हम सिर्फ ग्लोबल एस के बारे में बोल रहे हैं, इसलिए क्या होगा, आई लव इंडिया जो ग्लोबल में आई लव वर्ल्ड था वो आई लव इंडिया बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए उसके बाद जो प्रिंट एस होगा वो क्या होगा, आई लव इंडिया, ठीक है। तो अभी देखो फन का फंक्शन इसमें खत्म, इधर ख़त्म हो जा रहा है, तो क्या होगा, वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को आएगा यूजिंग। फिर क्या होगा, प्रिंट एस, प्रिंट एस मतलब क्या, तो ग्लोबल एस जो ग्लोबल स्कोप में जो है आई लव इंडिया उसी को प्रिंट करेगा। क्यों, ये आई लव वर्ल्ड नहीं था, क्योंकि उसने पहले, उससे पहले वो आई लव इंडिया बोल के चेंज हो गया था, ओके, ठीक है। तो दिस इज लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल। नेक्स्ट थिंग, we'll be talking about let's we solve this example as well. So see this example. We देखो the definition of the function and function definition में इधर खत्म हो रहा है, और फिर क्या हो रहा है, ये आपका ए बी एक्स वाई, ये क्या है आपका, ऑल आर द ग्लोबल वेरिएबल। क्यों, क्योंकि वो फंक्शन के बाहर लिखा। फिर क्या हुआ, फंक्शन 50 और 100 बोल के आर्ग्यूमेंट मतलब पास किया गया, इसको, इस पैरामीटर को, एक्स एंड वाई पैरामीटर, इसीलिए तो ये पास करते हैं तो क्या होता है, consecutive argument will be copied to consecutive parameter। मतलब क्या, फन में 50 पहले लिखे हैं और 100 बाद में लिखे हैं, इसीलिए इधर भी x पहला है और y बाद में है, इसीलिए क्या होगा, x का वैल्यू क्या बन जाएगा, x will correspond to 50, similarly y will correspond to, ठीक है, तो x का वैल्यू क्या बन जाएगा, 50 बन जाएगा, y का वैल्यू क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा, क्योंकि तो क्या बोलते हैं हम, फंक्शन कॉलिंग बोलते हैं, ठीक है। और फंक्शन कॉलिंग में किया हुआ है, पहले हमने देखे थे कि देयर इज नो देयर इज नो आर्ग्यूमेंट while calling, but this time we have assigned two arguments, one is 50 and another is 100. This 50 is passed to x and 100 is passed to y, इसलिए x और y का कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू 50 और 100 होगा, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल ए, तो ग्लोबल ए मतलब क्या, ग्लोबल ए मतलब क्या, पहले बताओ इसका मतलब क्या, ए बी एक्स वाई इक्वल टू 1 2 3, तो हम क्या जानते हैं, इसका मतलब ये है कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू का वेरिएबल का वैल्यू जो भी होगा उसी तरह रहेगा, तो
मतलब ए जाएगा 1 का वैल्यू बन जाएगा, एक्स का वैल्यू बन 3, वाई का वैल्यू बन जाएगा 4। ठीक है, तो अभी जब हम लिखेंगे ग्लोबल ए मतलब ए का वैल्यू 1 को हम एक्सेस करेंगे, तो फिर ए इक्वल 10, इसका मतलब क्या होगा, ये भी ये जो 1 था, ये जो 1 था, ये जो 1 था इसको चेंज हो जाएगा, कहाँ कैसे चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 10 बन जाएगा। उसके बाद एक्स वाई इक्वल टू वाई का मतलब क्या, एक्स और वाई में कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो कॉपी होगा क्या है, वाई और एक्स का मतलब एक्स वेरिएबल में वाई का वैल्यू कॉपी होगा और वाई वेरिएबल में एक्स का वैल्यू कॉपी है। तो अभी वाई का वैल्यू अभी क्या है, वाई का वैल्यू 4 है, तो 4 कॉपी हो जाएगा कहाँ पे, एक्स पे, मतलब एक्स का वैल्यू अभी बन जाएगा 4। ठीक है, फिर वाई का वैल्यू, वाई वेरिएबल में किसका वैल्यू कॉपी होगा, एक्स का वैल्यू, इसलिए वाई का वैल्यू बन जाएगा 3, तो अभी वाई का वैल्यू बन जाएगा 3। मैंने इस तरह किया, मतलब डोंट थिंक दैट कि एक्स पहले 4 हो जाएगा, फिर एक्स का वैल्यू 4 है, फिर वाई का वैल्यू फिर से 4 होगा, नहीं, मैं बस को समझाने के लिए इस तरह मतलब ड्राइंग कर रहा हूँ। बट ये वाई और एक्स क्या है, दीज आर द वैल्यूज़। ठीक है, तो पहले हम क्या जानते हैं, हम जो प्रोग्रामिंग में जानते हैं, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एल वैल्यू आर वैल्यू, इजंट इट। तो हम जानते हैं पहले आर वैल्यू क्या होगा, दे विल बी ना, क्या बोलते हैं, दे विल बी इवेलुएटेड। तो इसमें इक्वल टू के बाद वाई का वैल्यू कितना था, 4 था, और एक्स का वैल्यू कितना था, 3 था, तो 4 3 इस तरह हो जाएगा। इसका मतलब क्या, एक्स 4 को कॉरेस्पॉन्ड करेगा, वाई 3 को कॉरेस्पॉन्ड करेगा, तो इसीलिए ये आपका इस तरह हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में क्या है, b इक्वल टू 20। अभी ये b क्या है, ये b, ये वाला b है क्या, जस्ट थिंक ऑफ इट, ये वाला b, ये b है क्या, नहीं। ओके, ये वाला b, ये b नहीं, हमने ग्लोबल a के बाद और कोई वेरिएबल लिखे नहीं, इसलिए ये क्या है, ये भी आपका लोकल b है। तो b का वैल्यू 20 हो गया, फिर b का वैल्यू 30 हो गया, इसका मतलब क्या, ये फिर से 20 से 30 बन गए, तो फाइनल वैल्यू कौन सा है, ये वाला, फिर c इक्वल टू 30। तो दीज आर सम वेरिएबल असाइनमेंट। उसके बाद प्रिंट ए बी एक्स वाई, अभी a का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू, टेल मी। तो अभी a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू आपका, तो ग्लोबल ए का वैल्यू जो है वही है, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू जो फाइनल वैल्यू कितना है, 30। ठीक है, लोकल वेरिएबल। ठीक है, फिर एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स का वैल्यू कुछ चेंज हुआ है क्या, का वैल्यू चेंज हुआ, बट मैंने गलत कर दिया, गलती से आपको ये बता दिया कि ये 3 और 4 इस तरह चेंज होंगे, बट आई एम एक्चुअली मिस्टेकन, आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैंने सोचा था कि ये एक्स वाई इधर है बोल के, बट एक्स और वाई का वैल्यू 50 और 100 थे ना, एक्स का वैल्यू क्या था, देता हूँ नहीं तो वो कन्फ्यूज हो, एक्स का वैल्यू आपका 50 था, वाई का वैल्यू 100 था। ठीक है, तो ये जिस जब एक्स वाई इक्वल टू आई एक्स होगा,
ये वाला ग्लोबल वाला एक्सेस नहीं होगा। क्यों ग्लोबल वाला एक्सेस नहीं होगा? क्योंकि हम इस फंक्शन के अंदर सिर्फ ग्लोबल ए को ही मतलब एक्सेस कर रहे हैं, बी एक्स वाई को एक्सेस नहीं कर रहे हैं। तो इफ यू आर राइटिंग एक्स वाई, तो वाई का वैल्यू कितना है? वाई का वैल्यू जाएगा, वाई का वैल्यू अभी 100 है और एक्स का वैल्यू कितना है? 50। तो अभी क्या होगा? 100 विल बी असाइन टू एक्स एंड 50 विल बी असाइन टू वाई। अभी 50 किस में असाइन होगा? वाई में। तो वाई का वैल्यू जो 100 था पहले, वो क्या बन जाएगा? 50 बन जाएगा। 50 था तो आपका 100 बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ए बी एक्स वाई। अभी जब प्रिंट होगा तो क्या होगा? ए तो वैल्यू आपका 10 हुआ क्योंकि वो ग्लोबल में है, और बी क्या होगा? वो लोकल का वैल्यू लेगा 30। एक्स का क्या होगा? एक्स भी ये आपका लोकल वेरिएबल को, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा? 100 एंड वाई का वैल्यू। Okay, so in this way you have to think and you have to analyze the solution. Okay, so this is how you can get this thing. उसके बाद, so it is already time, but still I will take another 2-3 minutes. Let's go to the next slide. तो ये आपका इस जब ये रन करेगा तो आपका क्या प्रिंट हुआ था? आपका जब ये रन हुआ था, ये वाला रन हुआ था, क्या प्रिंट हुआ था? 10 30 150। तो इधर 10 30 150। ठीक है, ये जब रन हुआ तो 10 30 150 प्रिंट हुआ। उसके बाद क्या होगा? ये आपका ख़त्म हो गया, ये आपका ख़त्म हो गया। फिर क्या होगा? इधर से वो आ जाएगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। हाँ, आपका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो अभी ए बी एक्स वाई किस तरह होगा? तो ए का वैल्यू कितना था अपना? ए आपका ए 1 नहीं था, वो 10 हो गया था। क्यों? क्योंकि हमने ग्लोबल एस करके इसको ए का वैल्यू 10 कर दिए थे, तो ए का वैल्यू 10 आ गया। फिर बी का वैल्यू क्या होगा? बी का वैल्यू बी का वैल्यू 2 ही रहेगा। क्यों 2 रहेगा? क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं है, बस ग्लोबल जो वेरिएबल हम एक्सेस कर रहे थे सिंपली ए को ही एक्सेस कर रहे थे। वी आर नॉट एक्सेसिंग एनी अदर वेरिएबल लाइक बी एक्स वाई। ओके, दैट्स वाई द बी विल बी द ग्लोबल बी only, so that is 2. And similarly xy only global xy 3 and 4. Local xy has been used here and their scope is limited to this function only. Okay, 10 2 3 4 होगा। Okay, so this is all about today's lecture. In next class we'll be talking about some more about this functions. Here we'll be talking about the nested function and non-local variable.